Amalesh sir, hello, good evening, Amalesh sir. Kindly check the PPT. Amalesh sir, hello. Amalesh sir, good evening, Amalesh sir. Hello. Hello. Amalesh sir, can you hear me? Amalesh sir, hello.
Amlesh, is it possible? Can you in a position to present the PPT, and can you say one hello so that we can understand that the whether your mic is audible or not? Hello, Amlesh sir. Amlesh sir, kindly again please leave and join again because it's showing Kumar Abhishek. Please leave once again and then rejoin, please. Request and apology to all the participants. Kindly wait for the 2-3 minutes more as RP of the today is facing some technical glitches. I hope he will sort it out within two few minutes, and after that we can start the program, start the session. Sorry.
Hello, good evening. Yes, that's a nice thing. Amlesh sir, we are desperately waiting for your presence. Thank you, sir. Okay, Good good evening, evening, sir. everybody. Sorry for delay. Actually, some No, that's technical okay. issue was there from my side. I don't know whether it is from the software side, but finally it is resolved. Because maybe Resolved. uh, good afternoon and good evening to all of you, all the participants, especially to the today's RP, the smiling, energetic, who is telling the technical glitches, whom used to sort out all the technical glitches whenever it's happened in our previous schools. So I'm very happiest personally that again my ex-colleague to be the today's the trainer of the today and one renowned RP and psychologist. What more I should say about him on behalf of the entire participants and on behalf of the Aryavata Sahodev School Complex, I extend my heartfelt thanks to you to taking part in this session as well as to giving a consent to conduct the session. On behalf of the training coordinator, unfortunately, is not present, and deputy training coordinator also not present. And on behalf of the all executive members, I thank you and extend my heartfelt thanks and welcome you for the session. And the topic of today is mental health. Everybody knows that we are all facing a lot of issues regarding this topic, and I'm sure within the next 1 hour will be a wonderful session and with a wonderful trainer. Over to him, sir. Thank you for these words of blessing. I always used to receive, and I'm very fortunate that I'm having people like you, ma'am, all around. Those who are always keeping me in your prayer and all. Well, um, ma'am said so many things, but she has also contributed in shaping my all personality at all, and in my ways is always being a very much a helping hand. uh, Dear participants and teachers trainers, so we are going to discuss a very important and a vital topic, that is mental health. And you know that mental health is a nowadays a topic that is going to be very serious issue, even in a practical, if we'll go there to our school, and even in our society we'll find that many upcoming brains are very much suffering from this problem. uh, so uh, let's move there to this topic. Okay, I'm sharing my PowerPoint presentation, and then you will be very much feel free to optimize it. Hello. You're audible, sir. Okay. I'm just going to share the PPT here. Also, I'm getting some problem. Entire screen. Sharing. Okay. So are you able to see the screen? Hello. Is the Yes, sir. screen visible? Okay. Able to. So Your let's start. desktop is visible. Topic is mental health, and this we are going to this
training is focusing there to the issues of a mental health actually the school students are suffering from. Okay, so let's begin there with the topic. Here is the mental health and well-being. It's a very important topic. So very first question there is, uh, what is health? One question is there, what is health? Okay, so WHO is having its own definition. Okay, and we people are having our common notion that what is health. So if anyone can tell me that what is health apart from this WHO definitions, what common people or the laymen are believing, what is health, what is their thought about the health? Anyone? Okay, so it's coming there in a text. Okay, so all right. So it is coming there to the physical and mental wellness. Rashmi Singh is writing here, and many are writing that. I asked not the proper definition of this. What the common people are believing, mental wellness, physical wellness, that is coming as a so. mm, uh, okay, free from disease. All right, one uh, very good, mentally calm, free from disease, body. So I'm getting so many that Ritik Kumar Thakur is writing here, that free from diseases. This is the common thing whenever we are talking about health. Health means that free from diseases. But what WHO is telling to us, WHO is not limiting uh, the health there to the free from disease. What they are saying, health is a state of complete physical, mental, and social being. Mental and social being. That social being. That is a very much important thing. So it's not a merely absence of any disease or any kind of infirmity. WHO is saying that the three things are very important to be called as a healthy person or to be called as a health. What? One, complete physical state of a person, mental state of a person, and the social well-being. Suppose a person is very healthy, the person is having Herculean power, and person is mentally sound also, but the person is not having any social status, no social regards, and even society has discarded that particular person, cannot be healthy. That social health is also very much important. Social health, that is also coming from a financial health. All right, if a person is a bankrupt, that person will lose all the social status, and then definitely person will be very much in a trouble. That person cannot be healthy one. So if we'll go there to the health is the combination or culminations of what the physical, mental, and social well-being, that has been defined by WHO. Okay, so if anyone is having question that may raise, I'll go there with that. Okay, so no issue with that. Okay, so time to time I'll come there to see your responses. Very good responses are coming. It means that we are learning together. All right, so many happy faces are coming also time to time. And very much Pramod Kumar sir, mental health means the psychological health. All right, psychological health means not only psychological health, all other so many factors are there to be called as a health. All right, so now we'll go there to the next one. More health is there, that is the mental health. Okay, so mental health, without mental health we cannot imagine about the health actually. All right, the health is a culmination of all, and mental health is a component of it. So without this mental health, you'll think that things are very much like an empty matchbox which is not having sticks. So how you'll ignite that? The matchbox is worthless if you are not having matchsticks there inside. So mental health, if a person is not healthy, there
mentally cannot be healthy in any respect. So now come there to the mental health refers to our emotional, psychological, and social well-being. All right. So these are the three things. The mental health means our mental health is being affected by the emotions. If we are not able to control our emotion, all right, and if the emotional fluctuations which are damaging our by affecting our biochemicals, that could lead us there to the mental issues, some psychological, our thought process, our memory, all the cognitive part, all right, all the cognitive part, if it will be disturbed, if it would start behaving in a abnormal way, that will lead there to the mental issues. So psychological factors are there. That factors are, if it is all good, then the people will be called mentally healthy. And the social well-being, I said that the how society is uh, being with you, all right, that all three is a making your mental health. And if you are having a good mental health, means you are very much healthy in other sense, all right. So good mental health help us to handle the life challenges. Why good mental health is very much needed? Because life is a filled with the challenges, all right. And if you want to deal these challenges, you have to be healthy. Which health? Mental health must be sound, must be good, all right. And you have to build a strong relationship. Strong relationship is also very much a kind of vitamin there to have a good mental health, all right. So these are the oxygen. And the make healthy choices. Healthy choice means the life choices, your eating choices, your environmental selection, what you are taking there from outer environment, what you are taking from your society. That choice must be healthy one, because your healthy choice will lead you there towards the healthy mental state, all right. If you will choose some messy thing, definitely you have to suffer from your these mental issues will be there with you, okay. Mental health and well-being are the crucial aspects of our overall health, if you are talking about. So mental health is a very vital topic if you are going to discuss health. So if you will take out mental health, then there is a no health at all. Over health, all health, that will be very much disturbed. If we are talking about this mental health, especially huge number of myths are there. People are not ready to understand, and they are having their own perceptions, and that perceptions are very wrong. These wrong perceptions are the myths here. So what the people, the common myths which are very much there related to the mental health or mental illness, what the people are thinking about it, these are the myths, not correct one. But it is when mental illness is caused by evil spirit or the supernatural power. When the psychology, and when the psychology was not a subject, and even when psychology started, and till date many researches are going on, but still people are believing. If you'll go there to the rural areas, you will believe that people, a person who is having a mental illness, and and that would not be considered as a mental illness, that will not be considered as a mental issues, all right. It, people will never accept this is the mental health. They will think about that it's a effect of evil spirit, it is just because of supernatural power. So they will go there to the oza, all right. And then all sort of rituals they will perform to get rid of it. आज भी ये चीजें चलती हैं, आज भी ओझा, भूत, डायन, ये सारी चीजें चल रही हैं. एक्चुअली द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मेंटल हेल्थ इश्यूज. ये मिथ्स है कि मेंटल इलनेस का किसी तरह का कोई कनेक्शन दैट इज नॉट देयर विद द एविल स्पिरिट, किसी भूत पिशाच और इनके सुपर पावर से रिलेटेड नहीं है. फियर कॉज हो सकता है जो इसके चलते क्रिएट किया गया हो, बट ये एक फैक्टर नहीं हो सकते दैट टू क्रिएट मेंटल इलनेस. Another myth is that the mental illness are untreatable. That is also myth. It is completely, all right. Some disorders that the people are bound to live it with,
in a better way, if we'll give some rehab training, they could live with that disorders. But if anybody is saying that mental illness could not be cured, it's a completely wrong. Okay, success rates are also very good. If you'll go there in a data analysis, we'll find that much of the mental issues are being dealt in early stages. Even in advanced stages, uh, some psychiatrists are giving some medicines and even some practice that the person can come back there from that state. Third myth is that lack of willpower, all right, causes the mental illness. There is no connections related to the willpower, all right. Mental illness that could be created, and so many factors we'll discuss that factors are there. And one more thing, that is a common notion in society, marriage can cure the mental illness. People are also believing शादी करा तो दिमाग ठीक हो जाएगी शादी करा तो दिमाग ठीक हो जाएगी, है ना। ये कई लोगों के केस में हुआ भी होगा मैं बच गया था इससे, बट ये एक कॉमन रहता है दैट मिथ कि मैरिज से इसका कोई कनेक्शन नहीं है. इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल इलनेस और मेंटल इश्यूज, मैरिज इज नॉट गोइंग टू हेल्प. कई केस में अगर हुआ भी होगा तो दैट इज अ बाय चांस, राइट. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैरिज इज अ ब्रिंगिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज डिस्ट्रैक्टेड द पर्सन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थॉट पैटर्न. एंड थॉट पैटर्न के चेंज होने से हो सकता है कि उसको उसका एडवांटेज मिला हो और वो मेंटल हेल्थ उसका स्ट्रांग हो गया हो. बट इट्स नॉट अ इन जनरलाइज्ड वे. मेंटली इल पेशेंट्स बिलोंग टू हॉस्पिटल्स. जरूरी नहीं है, मेंटली इल पीपल कैन बी देयर विद यू, और वो ठीक से हो सकता है कि हमारे पेस से पेस ना मिला पाए, बट दे कुड बी अ बेटर पर्सन एंड दे कैन बी विद अस इन अ नॉर्मल लाइफ. जरूरी नहीं कि अब कोई मेंटल इलनेस अगर हमने उनके अंदर डिस्कवर कर लिया है तो उनको सीधे ले जाके हॉस्पिटल में बंद कर दें. That stage is a very much advanced stage when the person is in a need of the hospitals at all. Okay. Time to time I'll ask that, am I audible? Hello. Yes. Okay. So mental health problems are only seen in the uh, illiterate or the poor people. This is also very, very untrue. Anyone can be the victim of mental health issues. So it's not very much related to illiterate or the poor people. Anyone can be the victim of mental health issues or mental illness. All right. So these are the certain myths. People with the mental illness can never be productive or do normal work life. हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर लिए हैं. So many people were having mental illness and they became a great people, a great personality. All right. जिनके पास कई तरह के issues थे, that was psychological issues or mental issues थे, but they became very productive and they are recognized. ऐसे साइंटिस्ट के बारे में कई बार डिस्कस होता है. राइट. तारे जमीन में आपने देखा है कि हाउ अ चाइल्ड was being transformed and that child has became very much productive there at the end. शुरू में जैसे उसको वर्थलेस मान के चल रहे हैं सब कि ये बेकार है, कुछ नहीं करेगा, but one teacher came in her life and that teacher changed the life of that boy who was suffering from a mental health issues. All right. So now come that this is unlike जैसे किसी को सर्दी जुकाम बुखार हुआ, मेंटल इलनेस भी उसी तरह का है, तो उसको ऐसे ही डिजीज के रूप में ले. जैसे मेंटल इश्यूज हो गया, कोई साइकेट्रिक के पास चला गया, सीधे डिक्लेयर कर देते हैं कि चलो इसका तो खेल खत्म है, इसका ऊपर वाला माला खाली हो गया, ये पागल हो गया. ऐसे ऐसे हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि एक बार साइकेट्रिक के पास चला गया मतलब इसका खेल खत्म हो गया. ये उसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि हमारे पास सर्दी बुखार जुकाम खांसी ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां होती हैं. तो मेंटल इलनेस इज अ वेरी मच लाइक अ फिजिकल इलनेस ही है. और इसके लिए भी डॉक्टर्स पास काउंसलर के पास जाने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. बट ये मिथ दिमाग में नहीं रखना है कि इट इज some kind of thing that is going to destroy the entire life of any individual.
Mentally ill people have a weak characters. That is also very wrong, since they cannot cope up with the world in the same way that the rest of us. कई केसेस हैं जिसमें उन्होंने नॉर्मल लोगों से बेहतर कोप किया. Alright, they were capable enough to cope up with the world even better than the people those who are considering themselves as a normal. Alright, and the 10th myth that once a psychiatric patient always a psychiatric patient. It's not true. It's a myth. ये जरूरी नहीं है. साइकेट्रिक के पास लोग हो सकता है कि अर्ली स्टेजेस या एडवांस स्टेजेस में जाते हैं और कई महीने, दिन, साल हो सकता है टाइम लगे, बट क्योर जो है उसके सक्सेस रेट हैं. द पीपल आर रिटर्निंग बैक देयर टू देयर नॉर्मल लाइफ. ओके, तो ये मेंटल इलनेस पे ये तो समझ लें कि भैया ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि एकदम से किसी के पास अगर हमारे किसी बच्चे को डायग्नोस हो जाती है और इफ पेरेंट इज अप्रोचिंग टू अस एंड टेलिंग इज सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड वी आर थिंकिंग दैट कि चलो चाइल्ड का तो खेल खत्म हो गया. ऐसा नहीं है. हम कोशिश करते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दैट वी कुड ब्रिंग दैट चाइल्ड बैक देयर टू द नॉर्मल लाइफ. ऑलराइट, some data, that alarming data are there. all right, तो ये देख लें कि हमारा डेटा क्या कहता है. अगर ये डेटा हम ध्यान रखें तो that could be a better thing there too. Okay, so now come there to one data back. I'm going in 2017, one global report came there on the mental health issues, and was found that 197.3 million people, they were suffering from different type of mental health issues. The number, it was that data was a 2017. तो अभी का अगर देखेंगे तो ये नंबर बढ़ गया होगा. सर्वे इज स्टिल ऑन और इसके रिपोर्ट सब फिर से अपडेट होंगे आने वाले टाइम में. पीपल विद द मेंटल डिसऑर्डर इन इंडिया, अब इंडिया की देख लीजिए, अगर 197.3 मिलियन है तो उसमें से 14.3 लोग हमारे देश में हैं. ओके, ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. हाँ, पूरे पॉपुलेशन के हम अगर हम जो 140 करोड़ लोग हैं उसका 14.3% लोग किसी न किसी तरह के मेंटल हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं. ये नंबर 2017 की है. अब ये 17 से लेके जो एरा ऑफ थ्रोट कटिंग मार्केट एंड दैट टेक्नोलॉजी intervention, these all have raised this percentage much higher than that. तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि ये नंबर घटने वाली नहीं है, ये बढ़ने वाली है. just because of that, when that NEP was framed, or NCF, this mental health was kept as a subject to discuss there in the schools, or teacher must be aware with this, because these issues that could be a more there with the advancement of technology, or the use of technology, or the change there in the our environment, that our climatic change. So many changes are going hand in hand, and these changes will bring up some issues, and that issues will be more there in a mental health area. So we have to be very alert. Now come there to the mental disorder contributed 4.7 of the total dailies in India. All right, so these dailies means that those who are living 4.7% लोग जो हैं हमारे यहाँ क्या है, अभी डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ जी रहे हैं. इस पूरे में से जितने लोग मेंटल गए, मेंटल हेल्थ से इश्यूज किए, उसमें से अभी एग्जिस्टिंग डेटा अगर 2017 का देखें, दे 4.7% लोग क्या है, इसके साथ जी रहे हैं. डिसेबिलिटी क्रिएट हो गया मेंटल हेल्थ की वजह से, फिर एक उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर लाइफ चल रही है उससे. ठीक है ना, मतलब विद मेंटल इश्यूज दे आर लिविंग देयर लाइफ. 4.7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है. ये डेली जो है वो हम इसको डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स कहते हैं, जो कई सालों तक ये मेंटल
डिसऑर्डर की वजह से जो डिसेबिलिटी क्रिएट हुई है उसके साथ लाइफ जी रहे हैं। ऑलराइट, तो ये नंबर बहुत बड़ा है। अब 4.7 है 2017, तो विल गो देयर टू द हायर इफ विल गो द न्यू डेटा इज अबाउट टू कम एंड विल गेट इट। तो ट्रेंड तो बता ही दे रहा है कि कितना बढ़ सकता है इफ विल गो 10 to 12 और 15 years बैक। तो हमको नजर आ रहा है कि जब ये ट्रेंड था देन डेफिनेटली the situation will be more serious even in new days. Okay. I'm not sure whether this data is very much visible or not, but some disorders are there, and according to that, male, female, and both the sexes. All right. So here, on the basis of gender, the more vulnerable they're in the certain category of disorders that we are going to talk about. डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये अगर हम दोनों को मिला दें इंडिया में, तो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं उसमें 33.8% सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन के होते हैं। तो ये डिप्रेसिव है। और मेजर डिप्रेसिव जो है वो 26.7 है, जो लोग साइकेट्रिक के पास पहुंच गए हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है ना। डिस्थेमिया ये एक माइल्ड डिप्रेशन है, उसके पेशेंट जो है वो 7% के आसपास है। ये क्या है कि लॉन्ग लास्टिंग फ्रॉम अ डिप्रेशन है। ये एक थोड़ा सा माइल्ड है, रहता है, लेकिन ये लंबे समय तक रहता है। इसके पेशेंट जो है वो कम है हमारे देश में। ये हम 2017 का डेटा क्या एनालिसिस दिखा रहे हैं आपको। अगर we'll compare the male, so in case of male depression, so we'll find that male has better condition। ओवरऑल डिप्रेशन में 28.9% मेल को डिप्रेशन है और 38.6% फीमेल डिप्रेशन है। मतलब डिप्रेस होने के मामले में फीमेल थोड़ी आगे निकल गई है। ओके, या मेजर डिप्रेशन में भी वो आगे ही है। 22.7% मेल का है और 30.6 है। इवन इन द माइल्ड वन, ओके, डिस्थीमिया में भी 6.2% मेल को ये प्रॉब्लम है और 8% फीमेल को है। Now come there to the anxiety disorder. Anxiety disorder, root cause of that depression also, ये एक सीढ़ी है। The anxiety disorder, if it will persist there for the long time, that may lead there to the depression and all. Okay, so now come there to depressive anxiety disorder. 19% overall, both the sexes, 19% people are very much suffering from this anxiety disorder. Then idiopathic developmental intellectual disability, इसमें पढ़ने लिखने और सोचने वाली प्रॉब्लम रहती है बहुत लोगों में। तो ये टोटल का 10.8 है बोथ द सेक्सेस में। इसमें मेल में ज्यादा है, फीमेल में कम है। सिजोफ्रेनिया अगर हम बात करें तो 9.8% दोनों का मिला के है, जिसमें 11.2 यहाँ मेल आगे है। मेल आर वेरी मच वल्नरेबल टू be a victim of schizophrenia. 8.5% of female are suffering from that. Bipolar disorders, all right, so that is 6.9%. These are the data. ओके, मतलब 4.9 से लेके 6.6 तक का ये डेटा जाता है। 7.2% ये मेल में है और 6.6% है। ये डेटा है। इसके बाद कंडक्ट डिसऑर्डर है। कंडक्ट डिसऑर्डर 5.9 है, जिसमें कंडक्ट डिसऑर्डर 7.9 मेल है, आगे है। तो ये तो बहुत ये है। कंडक्ट डिसऑर्डर जहां है वहां द पीपल आर वेरी मच इंजॉइंग इन ब्रेकिंग द लॉज। ये लॉज नहीं करते, लॉज को लेके बहुत रिजिड होते हैं। दिस फीमेल रेशियो इज जस्ट हाफ, कि उनका परसेंटेज शेयर कंडक्ट डिसऑर्डर जिसको सीडी कहते हैं उसमें कम है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ASD जो है, उसमें अगर हम देखें तो 3.2% ओवरऑल ऑटिज्म हमारे यहाँ है। 4.8 अगर हम देखें तो मेल में ये ज्यादा है ऑटिज्म और फीमेल में ऑटिज्म कम है। ओके, तो मेल चाइल्ड जो है लगता है बचपन से ही चुपचाप रहता है, शांत। इट्स funny thing, right? But autism is being affected there too. Male are vulnerable there to the eating disorder.
again that female are having much more, that approx double there to the male, 1.3. These are the data. Anorexia nervosa and bulimia nervosa that we will discuss. Anorexia and bulimia ये होता क्या है, ये हम लोग आगे भी देखेंगे. Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. ओके, स्कूल्स में ये बहुत डिस्कस होता है और आता है इसमें. अभी एडीएचडी के हमारे यहाँ अगर मिला के देखें तो 0.3 केसेस हैं, और 0.5 मेल में और 0.2. तो ये एडीएचडी कम हमारे यहाँ है और डिवास्टेटिंग भी नहीं है उतना, लेकिन इसको अगर प्रॉपर एडजस्ट नहीं किया गया एडीएचडी को, तो ये फिर लेकर चला जाता है अनदर जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके तरफ ये धकेल देता है. अदर मेंटल डिसऑर्डर है जो इनसे बाहर है, स्ट्रेस है. ओके, तो 8.0 है ओवरऑल दूसरे जो मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें मेल को ज्यादा ये प्रॉब्लम है और फीमेल को कम. These are the data. That data has been given by it is called the daily data. Okay, the people, those who are living. ये सब कुछ वो था कि इतने लोग डिसऑर्डर के साथ इंडिया में 2017 में जी रहे थे, ये चल रहा था लाइफ उनका. Okay, now come there to the next slide. Okay, and here are the some factors affecting mental health. Am I audible? Okay. So now I'm going to discuss this some affecting. Till now, if any question is there, I may go there too. Right? Okay. Well, messages are coming and these are good. Okay. So let's move there to the next slide, I hope. Okay. All right. So next topic is the factor affecting mental health in children. What are the factors? Some factors we'll discuss: the pain, injury, illness, and other changes are the stressor. Stressors are the all sort of thing. Those who are being stimuli, and that stimuli is creating some kind of problem there too. Okay, physical, mental, or the social. If it is affecting their mental status, their physical status, and their social status is creating the mental health issues there in the children. Worrying about the school work or the grades, these are the very common thing in the school. The children are being some people are they are very much believing that chodo na kya hoga, or so many the serious students are there, they are always being worried about the grade. और ये प्रोलॉन्ग जो होता है वो किसी ना किसी तरह का मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है. ऑलराइट, दैट कैन that sometime being very negative. Juggling responsibilities such as the school and the work on the sports. अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं कि दो ऑप्शंस ले लेते हैं. दे वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड द एकेडमिक ऑल्सो, एंड उसमें उनकी अब वो जगलिंग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कैपेसिटी उनकी लिमिटेड है एंड दे आर ट्राइंग टू कोप अप देयर विद द बोथ एकेडमिक एंड द स्पोर्ट्स, और उसमें वो कहीं ना कहीं इतने उलझ जाते हैं कि दैट लीड्स देयर टू द मेंटल हेल्थ इश्यूज. तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनको स्ट्रगल, आज ही मुझे एक मैसेज आया साइकोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं जमा करने के लिए, दैट girl child is a very good basketball player, and she is playing for the cluster and all, but the deadline that one was actually over, and she was a fail there in a submitting that practical file. So if you will read her message, this line will be well justified, and then she typed it and she sent it me privately, not in a group, and then she wrote that how she is struggling with these two things. So there, that very time, my responsibility is a very much matter there to handle the situations with such a children. Okay, she could not leave the sports because she's having very good interest in it, and even academics is understanding that academic is also equally important, but she is juggling with that, and that may create a mental health issues
here the role of parent, the role of a teacher is very important there to deal with. Okay, problem with the friends, this is also okay. I'm teacher of a girls schools. I understand that how they are having some kind of issues there with the friends, and the bullying, usually it is very common there, and the peer group pressure is also a factor to lead. Sometimes the peer group pressure is leading them there to do some kind of behavior. Later that behavior is becoming the reason of their mental health issue. Changing school, they are leaving their friends, and that is giving a kind of a pain, and then they are feeling that they could not adjust in the new environment, moving. Even the parents are moving from one city to another city. Sometime the children behavior are changing, so parents in the school must be very much alert if the new child is coming to you. All right, so there that very time adjustment is a very crucial thing to give that child a better treatment to adopt the new environment, because he has left his previous school or previous environment, and that may be a very much a painful event for that child. So here the role of a teacher is very important to deal with it. इसको जान लेना जरूरी होता है बड़ी प्यार से, ओके, ताकि उसको एडजस्ट कराने में, अगर ये एडजस्टमेंट इशू लॉन्ग टर्म रह गई तो दैट वुड लीड देयर टू द मेंटल हेल्थ इश्यूज. ओके, हाउसिंग प्रॉब्लम एंड होमलेसनेस, ज्यादातर देखेंगे कि जो होमलेस बच्चे हैं जिनके पेरेंट नहीं हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ. ओके, और दे आर बीइंग वायलेंट, दे आर being very much involved there in the, you will see that conduct disorder among them. स्टेशन के आसपास के जो बच्चे हैं उनके में कंडक्ट डिसऑर्डर रहता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. दे आर नॉट हैविंग दैट मच काइंड ऑफ इमोशन एम्पैथी, उनके पास कुछ ऐसा नहीं आता है. दीज ऑल आर द मेंटल हेल्थ इश्यूज. हैविंग नेगेटिव थॉट्स अबाउट देमसेल्फ, ये भी डेवलप हो जाएगा. नेगेटिव थॉट, दैट इज अवेयर रहना है एज अ टीचर कि बच्चे के अंदर कोई नेगेटिव थॉट नहीं डेवलप हो, और ये डेवलप हो रहा है, दैट मे बी devastating for the child. Going through the body changes, oh, at the age of teenage, when they are going through the puberty, and if that education is not there with the child, all right, and that child is thinking that some abnormal thing is happening with that. So here the role of parent and the child is a very teacher is very important to teach them about the changes, all right, which is very much natural than the boys and girls. All right, in my school there is a train, the girls are reaching there to the sixth class. They are getting all sort of training. Some gynae doctors are always being invited, and they are that one lecture, one session is being discussed about these changes that they are going through. So all changes, the psychological, emotional, physical, so all changes are being well discussed there to the girls. That responsibility school should also take. Sometimes parents are not very much discussing these issues, all right, there with their children, so they could get these all information, and they may be the victim of some wrong information also, that lead there to the mental health. uh, the parents separation, that is also divorce, and the separations are also a factor that is giving affecting the mental health of a child. Money problem in the family, if the family is suffering from a money, and the child is also observing it, so that could also help. Sometimes parents are saying कि ये तुम्हारा मतलब नहीं है क्या, तुमको क्या मतलब है, हम कहीं से ला रहे हैं ना, कहीं से मैनेज कर रहे हैं ना. But the child is a very sensitive one. That child is knowing that how my parents are struggling to get money, or we are not having money, we are not like other. तो ये सब चीजें भी अगर लगातार है, that is also leading there to the mental health issues there with the child. Living in the unsafe home or the neighborhood, अब unsafe home or neighborhood is also creating some kind of mental health there to that. Sometimes parent, a teacher
students are child is not telling that to the parent or not even there to the school, and they are being a victim of some kind of, or they are being trapped by the some anti-social people, those who are living in the home, even in the neighborhood. So these are also affecting the mental health. Some symptoms are there, physical symptoms, that decrease the appetite, भूख गायब, अगर शिकायत आ रही है किसी बच्चे में कि लगातार भूख खाए, एंड अदर चेंजेस इन द ईटिंग हैबिट्स, अचानक बहुत खाने लगा, खाना ही छोड़ दिया, ये सारी चीजें हो रही है, और दैट चाइल्ड इज मोर कॉन्शियस अबाउट दैट बॉडी वेट, बॉडी शेप, तो ये सब चीजें अलर्ट होना है। ये एक मिनिमम और ऑप्टिमम लेवल तक तो ठीक है, बट अगर ये बहुत एक्सेसिव है, इट मीन्स दैट चाइल्ड में suffer from mental health issues. हेडेक की शिकायत कर रहा है, एंड इफ हेडेक इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी फिजिकल रीजन, राइट, अगर किसी फिजिकल चीजों की वजह से नहीं है, इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी डिजीज, राइट, दैट फिजिकल इलनेस, तो मान के चलें कि ये हेडेक जो है दैट कुड बी रिजल्ट ऑफ एनी मेंटल हेल्थ इश्यूज। रिकरिंग न्यू और द रिकरिंग बेड वेटिंग, बच्चा कभी नहीं करता था और अचानक से बेड वेटिंग का इंसिडेंट शुरू हो गया और रिकरेंट हो रहा है। एक बार मान लो बेड वेटिंग हो गया और ये अब लगातार होने लगा, इसका मतलब है कि बच्चे को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है जो उसको इस सिम्टम के तरफ लेके जा रहा है। नाइट मेयर, सोते सोते अचानक चका के जग जा रहा है, डर जा रहा है, किसी चीजों से डर लगने लगता है रात को, मीन्स दैट चाइल्ड इज स्लीप डिस्टर्बेंस इज देयर, ओके, सो नहीं पाता है ठीक ठाक से। अपसेट स्टोमक, बार बार शिकायत करता है कि पेट खराब है, सो और ये बताता है कि एक स्टोमक पेन फील कर रहा है, एंड दैट चाइल्ड इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट वेयर एंड विच पार्ट ऑफ स्टोमक। तो एक वेग, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, और ये लगातार अगर शिकायत कर रहा है, इट मीन्स दैट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल। ये जरूरी नहीं है, बट ये कॉजेज हैं जो हो सकता है कि उसको ये है, इस पार्ट की जांच करा लेनी चाहिए। अदर फिजिकल सिम्टम्स विद नो फिजिकल इलनेस, कई बार क्या है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, अब बच्चे का कोई फिजिकल इलनेस नहीं है, हमने किसी फिजिशियन से दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी बच्चा का कह रहा है कि वो कोई प्रॉब्लम है उसको, तो वो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम हो जो सीधा का सीधा कनेक्शन उसका मेंटल हेल्थ इश्यूज से हो। सो दैट कुड बी अ reason. If the physician is not able to diagnose some kind of things and still that problem is existing, so that may lead there to the हेल्थ इश्यू हो सकता है, मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकता है, तो उसको किसी न किसी साइकेट्रिक से मिल लेना चाहिए। नाउ सम इमोशनल बिहेवियर सिम्टम्स इंक्लूड्स लाइक एंजाइटी एंड वरी, अचानक किसी में बहुत एंजाइटी है, चिंता है, नॉट एबल टू रिलैक्स, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, बहुत बेचैन रहता है, कान लाल हो जाते हैं, हाथ से पसीने निकलने लग रहे हैं, थोड़ा हाथ पैर हिलाने की आदत है, उंगलियों को बजाने का, तोड़ने का, मसल्स को ऐंठने का, ये सब जो है दैट इज सम इमोशनल बिहेवियरल सिम्टम्स है। न्यू और द रिकरिंग फियर्स है, कुछ नए फियर्स हैं जो पहले कभी नहीं डरा, अब अंधेरे से डरने लगने लगा, ओके, पहले लोगों के साथ वो बहुत इंटरमिंगल था, किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अभी कोई स्ट्रेंजर आ जा रहा है तो डर जा रहा है, अकेले उसको पहले छोड़ के चले जाते थे, अब अकेले वो छोड़ने पर चिल्लाता है, उसको डर लगता है। तो दिस मीन्स दैट चाइल्ड इज हैविंग सम इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स, और इट मीन्स ये कहीं ना कहीं कोई मेंटल हेल्थ इश्यू से रिलेटेड है। क्लिंजिंग, अनविलिंग टू लेट यू आउट, कभी पेरेंट्स को अपने से दूर होने नहीं देना चाहता है, चाहता है कि साथ ही रहें, और मम्मी का पल्लू पकड़ के रहना चाहता है, वो उनको बाहर आंख के सामने से नहीं जाने चाहता है, एंड नॉट फीलिंग कंफर्टेबल बीइंग अलोन इवन वो ग्रोइंग एज में भी, इट मीन्स द चाइल्ड may suffer there from a health issue। एंगर, क्राइंग, बार बार गुस्सा, चिल्लाना, सुबकना, रोना, ये सब चीजें हैं, और वो किसी रीजन के हिसाब से नहीं है, अगर ये ऐसे ही हो रही हैं without any substantial cause, it means child may leading there to the some mental health issue। aggressive or the stubborn,
जिद्दी हो गया, बहुत जिद्दी हो गया, बहुत एग्रेसिव है, तो इसका मतलब है कि कुछ बिहेवियरल इश्यूज हैं, बिहेवियरल सिम्टम जो है, और ये बिहेवियरल सिस्टम उसके कंडक्ट डिसऑर्डर क्रिएट करेगा, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज. Going back there to the behaviors of present at the young age, don't want to participate in the family or the school activities, और इसमें एकदम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. इवन कि कोई नाटक चल रहा है, उसमें कॉमेडी हो रहा है, जहां सब लोग हंस रहे हैं, वहां वो मुंह लटका के कहीं अकेले बैठा है. इवन वो डांस हो रहे हैं, गाना हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, उठ के कहीं चला गया, बीइंग अलोन, तो दैट मीन्स दैट चाइल्ड इज हैविंग सम प्रॉब्लम. तो उसको मेंटल हेल्थ का कुछ इशू है. अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होना होता है, पार्टिसिपेट नहीं होता है, किसी तरह से पार्टिसिपेट परफॉर्म करने की अलग बात है. इवन दैट चाइल्ड इज नॉट रेडी टू बी द व्यूअर, वो व्यूअर भी नहीं बनता है, वो ऑडियंस भी बनने को तैयार नहीं है, इट मीन्स द चाइल्ड इज हैविंग सम इश्यूज. Conduct disorders that I have already told. Conduct disorder is a very common there in the children. वो होता क्या है? It's a mental health condition. एक ऐसा condition है that affect the children and teens that characterized by consistent pattern of aggressive behavior. ये दिखने लगा तो समझ लिए कि सीडी है उसको. Aggressive behavior दिखाएगा. एक्शन जो होगा वो हार्म करेगा किसी वेलबींग को, अपने अदर्स को भी, मारपीट पे उतारू हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा, और ये नॉर्म्स तोड़ेगा, सोशल नॉर्म्स भी तोड़ेगा. स्कूल है तो स्कूल के नॉर्म्स को भी तोड़ेगा. एंड इवन इफ दैट चाइल्ड विल प्रोवोक अदर्स टू ब्रेक द लॉ. राइट. तो जो बच्चे कंडक्ट डिसऑर्डर के हैं, ये बहुत कॉमन है, होंगे, तो उनको आइडेंटिफाई करना है. एक फ्लैग उनके ऊपर रहना चाहिए कि हाउ टू डील विद दैट चाइल्ड. और उनको आप एग्रेसिव तरीके से डील ही नहीं कर सकते. अगर लगता है कि कोई ऐसा बच्चा है जो सीडी का शिकार है, तो अगर क्लास में वो आपकी बात को डिफाई कर देता है, तो डोंट बी ऑथोरिटेरियन एंड डोंट टेक इट अदरवाइज. वो मान लीजिए कि हो सकता है वो सीडी से ग्रसित हो, और आप कह रहे हैं कि हमने कहा कि खड़े हो जाओ, और वो खड़ा नहीं हो रहा है, देन यू जस्ट कॉल सम सीनियर, राइट, और इन्वॉल्व अदर ऑल्सो, एंड देन try to understand that child may suffer there with the conduct disorder. क्योंकि वो कर रहा है, that is just because of disorder, is not ready to listen. वो डिफाई कर रहा है, आपके बात को मानने को तैयार ही नहीं है. वो आपको चैलेंज कर देगा क्लास में, और आपको लगेगा कि टीचर को कैसे चैलेंज कर सकता है, और आप लड़ बैठेंगे, वो पीछे नहीं हटेगा, तो नुकसान टीचर का है. इसलिए बेटर है दैट in such a case you just ask some senior, call them, and that senior definitely will help. And after that, all teacher must share that this child is having CD. So dealing with that particular child, the method would not be the common method as you are dealing with the others. तो एक स्पेशल तरीके से उसको डील करना पड़ेगा. ओके. ओके, कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द कंडक्ट बिहेवियर. उसका क्या होगा? तो डिसऑर्डर, ये पहले का इंपल्सिव होगा, अचानक नजर आएगा, गुस्से में बोलेगा क्या है, और रिएक्ट करेगा बहुत. एंड डिफिकल्ट टू मैनेज. कई बार तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. वो आप जितना कहेंगे उतना वो लॉजिक देगा, इलॉजिक भी देगा, जो आपको लगेगा कि इलॉजिकल हो रहा है, बट वो एक्चुअली वो सीडी उसको है. और ये सीडी जो है वो कैसे, ऐसी डिसऑर्डर नहीं है, उसको आराम से हैंडल करके हम उसको दूर कर सकते हैं. इससे कुछ बहुत ये नहीं है, बट ये अफेक्ट कर सकता है अदर को, अगर इसको टाइम से हेल्प नहीं अगर हम इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है. दे डोंट सीम टू बी कंसर्न अबाउट द फीलिंग ऑफ अदर पीपल. उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि टीचर का अपमान हो रहा है, उसको पता ही नहीं कि अपमान हो रहा है आपका. वो उसको तो लग रहा है जो हम कह रहे हैं वही सही है, आप जो कह रहे हैं उसमें अपमान और सम्मान की क्या बात है. आपने कहा, हमने बोला, बात खत्म. ओके. तो ये सारी चीजें हैं. 4 core behavior of the conduct disorder. एग्रेशन होगा काफी टुवर्ड्स द पीपल एंड एनिमल. लोगों के बाद भी वो उससे एग्रेसिव रहेगा. एनिमल के प्रति भी वो क्रूर हो सकता है, वो एनिमल लवर नहीं होगा ज्यादातर जो ये बच्चे रहते हैं. वायलेटिंग द बेसिक राइट्स, अदर बेसिक्स राइट. दूसरे को अगर मान लीजिए कि सीडी है, तो बोला कि इस बेंच पे तुम कैसे बैठ गए, इस पे तो हम बैठते हैं, बैठने ही नहीं देगा, कुछ भी हो जाए तुम नहीं बैठ सकते हो, जाओ, यहाँ तो हम बैठते हैं. ठीक है ना. तो टीचर ने आज कहा है कि बदल गई, हम नहीं मानते टीचर ने क्या कहा, जाओ तुम जहां बैठते थे वहां बैठो. तो वो उसकी राइट को वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा.
डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो सीडी वाले बच्चे होते हैं ना, स्कूल से जब जाने लगते हैं तो वो स्कूल के प्रति बहुत रिवेंजिव होते हैं, वो चीजें डिस्ट्रक्ट कर देंगे, टीचर के चक्का को पंक्चर कर देगा, वो स्कूल की खिड़कियां तोड़ देगा, वो कंप्यूटर लैब में से कुछ तोड़ देगा। सो दीज आर द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी उनके दिमाग में रहती है। ये सीडी वाले ही बच्चे जो ऐसा करते हैं। लाइंग और स्टीलिंग, वो चोरी भी कर लेंगे, झूठ बोलेंगे, और बार बार होगा ये रिपीटेडली। एक बार हो गया तो ठीक है, उसको नहीं मानेंगे कि सीडी है, बट अगर वो कंटिन्यूअस कर रहा है तो इसका मतलब वो कंडक्ट डिसऑर्डर है उसको। सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स, रूल्स को छोटे मोटे रूल्स नहीं, कई बड़े नॉर्म्स तोड़ देगा, जैसे स्कूल से बंक कर जाना, दिस आर द सीरियस वायलेशन। किसी का मार करके नाक तोड़ देना, दीज आर द सीरियस वायलेशंस। बुलिंग है, वो करते रहेगा वो किसी को, ठीक है ना, बिना मतलब का किसी से कोशिश करेगा कि वो इंडल्ज हो किसी तरह की फिजिकल फाइटिंग, मेंटल फाइटिंग में। फिजिकल वायलेंस भी है पोटेंशियली विद द वेपन्स, कई बार वो हथियार से भी लड़ जाएगा, उसको एकदम नहीं ईंट उठा लेगा मारने के लिए, कुछ ये उठा लेगा। कई बार ये जो आप उस इंसिडेंट आते हैं कि स्कूल में बच्चा पिस्टल लेकर आ गया, कभी टीचर्स पे वो हमला कर दिया, दीज स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस सीडी। और इनको हम अर्ली नहीं आइडेंटिफाई करें तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो टीचर का रोल एकदम साइकोलॉजिस्ट का रोल है। वर्बल फाइट करेंगे, गाली गलौज, किसी बात को लेकर इलॉजिकल फाइट, धमकाना उनका बड़ा कॉमन चीज है कि चलो बाहर देख लेंगे तो उनको, ठीक है ना, यहाँ ना बोल रहे हो टीचर के सामने बहुत, देन विल सी आउट आउट ऑफ द स्कूल, ठीक है ना। ये जो आपको गैंग वैंग बनाते हैं, देन forcing the sexual activities, these are also very, they are, because sexual activities is a set with the norms, और नॉर्म्स तोड़ने की उनको आदत है, तो दे विल थिंक कि इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। ब्लेमिंग अदर्स ऑफ देयर ओन बिहेवियर, और हमेशा जो बिहेवियर एग्जिबिट करेंगे वो कभी उसमें कमी निकालेंगे कि पेरेंट का है, ये स्कूल का है, ये टीचर का है, मैंने उनसे सीखा है, इनसे किया है। तो दीज आर द सम कंडक्ट डिसऑर्डर। हर्टिंग एनिमल्स, रास्ते चलते जानवर को, ठीक है ना, ईंट उठा के मार दिया, ये कर दिया, और उसमें उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब कंडक्ट डिसऑर्डर है। इंटेंशनली सेटिंग फायर, कई जगह आग लगा देगा, माचिस से खेलेगा, कहीं फायर है। वेंडलाइजिंग और द डिस्ट्रॉइंग द अदर प्रॉपर्टी, किसी दूसरे की संपत्ति को तोड़ देना, कार लगी हुई है सुंदर सी, उसको खरोच दिया, उसके पेंट लगा दिया, डेंट मार दिया। उसका कोई ऐसा नहीं है कि किसी से एनिमिटी है, उसके ओनर्स को जानता भी नहीं होगा, लेकिन ये कर देगा। सरकारी प्रॉपर्टी है तो उसको तोड़ देगा। लाइट कहीं लगा दी, गवर्नमेंट ने इंस्टॉल कर दी, तो वो सीडी वाले लोग उसको तोड़ देंगे। लाइंग टू गेट अ फेवर और अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दो तो वो बोलेगा कि नहीं उसको दे दीजिए, हमसे नहीं होगा, झूठ बोलेगा कि उस दिन तो हम बहुत बिजी हैं। तो और फेवर लेने के लिए झूठ भी बोलेगा किसी का, राइट, कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे ने कर दी तो वो कोशिश करेगा कि दिस वन वाज डन बाय मी, और उसको धमका के रखेगा कि बोलना मत। स्टीलिंग फ्रॉम इंडिविजुअल पीपल, चोरी करना किसी से। ब्रेकिंग इनटू द हाउस इज अ बिजनेस, आगे चल के ये बर्गलर्स हो जाते हैं, तो हाउस ब्रेकर्स, बिजनेस ब्रेकर्स, ये सब काम सीडी वाले करेंगे। ब्रेकिंग रूल्स, ये सारे हैं इनके टॉपिक्स। नाउ कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज अमॉन्ग द चिल्ड्रन, हमारे बात करें तो हमारे पास जो मेंटल हेल्थ इशू है, एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, दैट इज वेरी कॉमन देयर इन द चिल्ड्रन। जनरलाइज एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, टेस्ट एंजाइटी, these are the certain anxiety very much visible there among the children, okay। जब टाइम एग्जिट करने वाला होगा मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। मेरे स्क्रीन पे सिर्फ पीपीटी है, सो आई एम नॉट एबल टू सी द टाइम इवन। साइन एक्सेसिव वरी, छह क्या? बज के 6:04, आप 5-10 2 मिनट, मिनट्स और ले लीजिए। ओके ओके ओके। ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं इसके साइन क्या है? एक्सेसिव वरी, बेमतलब के चिंता में डूबा हुआ है बच्चा, राइट, आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे को एक आप वरी अपना वो प्रेजेंट करता है। इफ यू आर trying to neutralize, then the child is putting another worry, means the chain of worries are there with the child। अगर ये है, it means the child is a having anxiety, restlessness है, स्थिर नहीं रह रहा है, बेचैन है।
तो भी आपको लगे कि उसको कोई ना कोई एंजाइटी है, मतलब कोई ऐसा स्ट्रेसर है जो उसको एंजाइटी में डाले हुए है। स्ट्रेसर को ढूंढिए, स्ट्रेसर को ढूंढ करके अगर हम उसको मैनेज करें, देन एंजाइटी यही खत्म हो जाती है। स्लीप प्रॉब्लम होगा, सो नहीं पाएगा, इंसोम्निया का शिकार हो सकता है। दैट इज कॉजेज क्या होगा, एकेडमिक प्रेशर, ये कारण हो सकते हैं एंजाइटी क्रिएट करने के लिए, एकेडमिक प्रेशर है। अब क्या है कि पहले तो उसने कहा कि ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और अचानक से एग्जाम आ गया, टीचर ने सबने कहा कि सब कॉपी दो कॉपी दो कॉपी दो, एंड नाउ एग्जाम भी है, एंड देन द चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू ऑल। तो ये प्रेशर उसको क्या करेगा, एंजाइटी में डाल देगा। पीयर प्रेशर भी एंजाइटी में डाल देगा। किसी ने कहा कि सुनो कल ये लेके आना, पिताजी के पॉकेट से निकाल लेना, ऐसा ऐसा करके कल लेके आना, तुम और हम बाइक से चलेंगे, यहाँ घूमेंगे। बच्चा नहीं चाह रहा है, बट प्रेशर इज देयर, दैट प्रेशर कि अब क्या करेंगे, दोस्त तो मेरे लेके नहीं जाएंगे तो क्या सोचेंगे, वो दोस्ती टूट जाएगी। These all sort of things are creating anxieties. This is very common. Then be the friend of the child and try to help. और इसके लिए एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी बच्चे से, तब वो आपके साथ ओपन होगा और अपनी एंजाइटी के बारे में आपसे बात कर सकता है। एंजाइटी के लिए कुछ टेस्ट हैं साइकोलॉजी में जो कंडक्ट किए जा सकते हैं बच्चे पे, और जाना जा सकता है कि हाउ मच लेवल ऑफ एंजाइटी दैट चाइल्ड इज हैविंग। Now come the another one is depression. Depression, persistent sadness, अचानक बहुत लंबे समय तक उदासी रहता है, खोया रहता है, कोई चीजों का हैप्पीनेस एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, इट मीन्स वो डिप्रेस्ड है। कभी कभी रोने लगते हैं लोग ऐसे। सेल्फ स्टीम एकदम लो रहेगा, दिल थिंक अबाउट कि अरे वर्थलेस है, बेकार है, ये दुनिया किसी काम की नहीं। गाना था जो एकदम लो सेल्फ स्टीम हीरो वहां गा रहा है कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। दैट मीन्स दैट हीरो वाज अ वेरी मच डिप्रेस्ड, पुअर कंसंट्रेशन, एक चीजों पे कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो वो बहुत बहुत डिस्ट्रैक्टेड व्यक्ति होगा, और उसके रिस्पॉन्स बहुत स्लो हो जाएंगे। दैट मीन्स पर्सन इज अ गोइंग थ्रू विद डिप्रेशन। या चाइल्ड जो है अगर इस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है तो अलर्ट हो जाइए, वो डिप्रेशन की ओर जा रहा है। कॉजेज क्या है, कॉजेज है लॉनलीनेस, बुलिंग, फैमिली स्ट्रेस, ये सब कारण हो सकता है कि दैट इज द कॉज ऑफ बुलिंग और द फैमिली स्ट्रेस, ये रीजन है। नाउ कम देयर टू स्ट्रेस एंड बर्नआउट। ये भी एक अलग बच्चों में दिखाई देता है, जिसमें हेडेक होगा, बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, लैक ऑफ मोटिवेशन, ये सब नजर आएगा। कोशिश किए जा रहे हैं टीचर कि वो मोटिवेट करें, फर्क नहीं पड़ रहा है। सारे मेथड्स यूज कर लिए, फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि बच्चे में स्ट्रेस है, बर्नआउट है, कुछ मेथड्स डिवाइस करना पड़ेगा। ऑलरेडी फ्यू मेथड्स आर देयर टू हेल्प दैट सच काइंड ऑफ चाइल्ड टू टेक दैट चाइल्ड फ्रॉम आउट फ्रॉम द स्ट्रेस। ओवरलोडेड शेड्यूल और हाई कंपटीशन आर द कॉजेज। आज क्या है, अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं बच्चे। अनरियलिस्टिक गोल एक बड़ा कॉज है स्ट्रेस एंड बर्नआउट का। हमको भारत का प्रधानमंत्री बन जाना है। आई नो दैट माई रिसोर्सेज, माई कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटी दैट कुड नॉट बी वेरी मच helpful or enough there to reach at that particular position, और अब हम उसको नहीं अचीव कर पाए, then it will lead there to stress and burnout। तो ये छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को धुआं में उड़ाना पड़ता है, then the people can come out from stress। तो पहले तो कि अगर बच्चा कोई हमारा अनरियलिस्टिक गोल के साथ है, जिसने बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा पाल ली है, तो और अगर वो महत्वाकांक्षा नहीं पूरा कर पाता है, देन द चाइल्ड में फॉल देयर इन द स्ट्रेस दैट मे गो देयर टू द डिप्रेशन एट ऑल। तो मेंटल हेल्थ का एक बड़ा कॉज हो सकता है। देन वी हैव टू बी, अगर उनका अनरियलिस्टिक गोल है तो सेट इट देयर टू द रियलिस्टिक वन, कि रियलिस्टिक वन तक ही आप उसको रख सकते हैं आफ्टर रीडिंग दैट। ADHD is also very common there in the school children। ये न्यूरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, ADHD that begins in the childhood and it may continue there to the adulthood। ये 60% लोगों में एडल्टहुड तक चला जाता है, ठीक है ना, और रहता भी है, और वो फिर डेली में चला जाता है। डेली का मतलब उनको इसके साथ जीना पड़ जाता है। इट अफेक्ट्स द हाउ अ पर्सन पेज अटेंशन, ओके,
and control impulses and manages energy or the activity level. इसमें क्या है, हाइपर एक्टिविटी एक है कि कई बार आपको लगेगा एक बच्चा घर में आया और 1-2 घंटे में उसने घर का पूरा नक्शा बदल कर चला गया। कई रिलेटिव्स के बच्चे, और बाद में तो रिलेटिव्स डरने भी लगते हैं कि ऐसे बच्चा को भगवान बचाए, ठीक है ना। वो आकर के हर चीजों को एक्सप्लोर करेगा, छुएगा, तोड़ेगा, हो सकता है कि घर का कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको वो एक्सप्लोर कर देगा या उसको डिसऑर्डर में कहीं रख देगा। दैट इज अ हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो और कई बच्चों में इसका ठीक उल्टा होता है कि कहीं छोड़ दिए तो कोई अटेंशन ही नहीं है, उसको बुला रहे हैं, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, और वो किसी चीज में उसको कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। दैट आदर। तो कुछ में इम्पल्सिव होते हैं, कुछ में ये बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए ये अटेंशन डेफिसिट भी है और हाइपर एक्टिविटी, ये दोनों एकदम, दोनों उल्टा पुल्टा है। तो ये दोनों को अगर हम एक साथ देखते हैं तो है क्या, इसका नाम साइकोलॉजिस्ट ने रखा, दैट इज एडीएचडी। और ये बच्चों में है। हालांकि एडीएचडी हमारे इंडिया में भी कम है, कैटेगरी है। क्या क्या है इसका, अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी, ये सारी चीजें हैं। इन अटेंशन होगा उसमें, सस्टेन अटेंशन नहीं होगा, किसी चीज को बार बार नहीं। ये आपको नजर आया है उस सिनेमा में जो बच्चे को ऑटिस्टिक दिखाया गया है तारे जमीन पर, उसको अटेंशन डेफिसिट भी है। और उसमें बहुत स्लो सारी चीजें हैं और एक इल्यूजन वाली लाइफ में। तो कई तरह के मेंटल इश्यूज का एक कल्मिनेशन करके उस चाइल्ड को सिनेमा में दिखाया है। Now come there to the causes and the risk factor. ADHD not caused by the bad parenting. किसी को इस दोष नहीं दे सकते हैं कि ये बैड पेरेंटिंग की वजह से। रिसर्चर ने इसको सिद्ध कर दिया है कि ADHD का कहीं कनेक्शन बैड पेरेंटिंग से नहीं है। जेनेटिक जीन्स के जो कॉपी होते हैं, जीन्स, उसमें एरर के वजह से एडीएचडी हो सकते हैं। जब ह्यूमन जीन ट्रांसफर होता है तो उसके बीच में अगर ट्रांसफर एरर होते हैं तो कई हो सकते हैं। और अगर जीन कभी से रहे हैं एडीएचडी के तो वो हो सकता है कि कहीं ट्रिगर कर जाए बच्चे में। तो इसका बड़ा रोल है जेनेटिक। सेकेंड, द डिफरेंसेस इन द ब्रेन स्ट्रक्चर एंड द न्यूरोट्रांसमिशन। अगर न्यूरोट्रांसमिशन किसी का डिस्टर्ब है, ठीक है ना, तो न्यूरोट्रांसमिशन जैसे हम अपने हाथ को ऐसे हिला रहे हैं तो इसके लिए न्यूरोट्रांसमिशन बहुत ट्रांसमीटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, उसके हाथ से हाथ चल रहा है, ये सब चीजें ब्रेन के पास जा रही हैं और वो इंस्ट्रक्शन हमारे मस्कुलर मसल्स मेमोरी के पास पहुंच रहा है और ये रिएक्शंस हो रहे हैं। तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, अगर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है और इसमें अगर न्यूरो ट्रांसमिशन का कोई रोल है, दैट में कॉज द एडीएचडी। पेरेंटल एक्सपोजर टू टॉक्सिन, ये भी है कि अगर प्रीनेटल एक्सपोजर देयर टू द टॉक्सिन, जब प्रीनेटल फेज में लेडी होती हैं और उस समय वो किसी तरह की टॉक्सिक चीजें ले रही हैं तो ये कॉज कर देता है एडीएचडी, उसका इफेक्ट पड़ते हैं बच्चे पे। प्री मेच्योर बर्थ, ये भी एक फैक्टर है। लो बर्थ वेट, बच्चे का बहुत कम वेट का होना, और ये सब रिस्क को बढ़ा देते हैं। ये सब एकदम से फैक्ट नहीं है बट रिस्क बढ़ जाता है, एडीएचडी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं उन लोगों में, दे आर द वल्नरेबल। Alright, the helpful strategy, which strategy that we could do, use planner and some apps there to remind। कुछ अगर एडीएचडी का बच्चा है तो एक प्लानर रखिए कि उससे कैसे कैसे क्या क्या कराना है, उसका एक इम्प्रूवमेंट चार्ट बना सकते हैं। एंड ब्रेक अ टास्क इनटू स्मॉल पीसेस। अगर एडीएचडी का बच्चा है तो उसको टास्क जैसे इन होल नहीं कभी देंगे, दैट इज बेटर टू गिव इन अ सम स्टेप्स and then after finishing one step then give it to the second then third, like this we can go there with the ADHD and धीरे धीरे वो डेवलप होकर के नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा और वो नॉर्मल पेस से चलने लगेगा। क्रिएट कंसिस्टेंट रूटीन, एकदम फॉलो कराएं, बीच में ब्रेक नहीं दे दें उसको, नहीं तो वो सारी चीज फिर जीरो पे चला जाएगा। रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन, कोशिश करें कि उसका डिस्ट्रैक्शन को कम किया जाए। वर्क प्लेस को थोड़ा शांत रखें, लिमिटेड स्क्रीन टाइम कर दिया जाए, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो वो उसी में रमेगा, उसी इन्वायरमेंट में जीना चाहेगा। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन, उसको योगा, म्यूजिक, डांस, ड्राइंग, इन सब चीजों के प्रति भी लगाएं तो एडीएचडी में बहुत सुधार होता है। मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी जो है दैट बिहेवियरल थेरेपी है, जिसमें उसको अलग बच्चों के लिए जो थेरेपिस्ट होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर उनको सिखाते हैं और उससे भी
जो उनका डिसऑर्डर है उसमें बहुत सुधार होता है। मेडिकेशंस हैं, कुछ मेडिकेशन है जो उनको दिए जाते हैं, स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। अगर वो उसके साथ अगर जीना है, मीन्स इफ अ चाइल्ड इज मीन्स वी थॉट दैट चाइल्ड विल गो इन द दिल्ली, दिल्ली का मतलब होगा अब उसके साथ ही उसको जीना है, देन उसको हम कुछ स्किल ट्रेनिंग दे देते हैं रिहैब के लिए। ऑर्गेनाइजेशन करते हैं टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल रेगुलेशंस और कुछ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग उसको देते हैं। स्टूडेंट्स को ये दे सकते हैं, मान लीजिए कि जिसके वजह से उसकी लाइफ आगे बेटर हो सकती है। पेरेंट टीचर सपोर्ट, इफ अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एडीएचडी, पेरेंट और टीचर के बीच का कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड विद द joint effort they can do better there in that. और भी है, जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। ईटिंग डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें एक्सट्रीम फूड रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, कोई जान तक चली जाती है, इतना वो अपना वेट का उसको फियर ऑफ गेनिंग ऑफ वेट हो जाता है और वो खाना ही खाना छोड़ देगा, और हालत होगी कि वो बॉडी को क्या करेगा, इतना लो वेट कर लेगा कि मल्टी ऑर्गन फेलियर तक के चांसेस हो जाते हैं। ये बहुत खराब है, उसको अपने बॉडी इमेज को लेके बड़ा इशू हो जाता है। देन बुलिमिया नर्वोसा है, इसमें बिंज ईटिंग इसको बोलते हैं, ये फॉलोड बाय द पर्जिंग। इसमें क्या होता है कि वो खाना तो खा लेता है लेकिन वो वॉमिटिंग करके उसको क्या करता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज और इनसे कोशिश करता है कि जो कैलोरी वो लिया है वो कैलोरी क्या करे, वो किसी न किसी तरह से बर्न आउट कर दे, कैलोरी बर्न आउट कर दे। ये सारी चीजें चल रही हैं और इसमें बहुत ये बहुत अनहेल्दी बिहेवियर है किसी का। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, जैसे ईटिंग अनयूजुअली द लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, ये बहुत खाता है ये लोग सीधे चले जाते हैं एक डिजीज है ओवरवेट करने का, और हम उसको क्या कहते हैं कि वो ओबेसिटी का शिकार। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर है। कुछ और है जिसमें एडिक्शंस है, यूजिंग अल्कोहल ड्रग्स एंड दे आर विद दैट, इसमें भी पीयर प्रेशर है, सब्सटेंस एंड एडिक्शंस, स्लीप प्रॉब्लम्स है, इंसोम्निया है, एंड दैट इरेगुलर स्लीप पैटर्न, ये सभी डिसऑर्डर है बच्चों में है, और ये टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से ज्यादा इधर देखा जा रहा है। डे टाइम फैटिक, दिन भर थके रहते हैं, इरिटेबिलिटी रहती है, चिड़चिड़े रहेंगे, पुअर कंसंट्रेशन, दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अभी ये बहुत कॉमन हो गया है बच्चों में स्लीप प्रॉब्लम, और इसका सीधा इफेक्ट उनके एकेडमिक पे पड़ रहा है, स्कूल पे। वो बच्चे ऐसे ही स्कूल जब आते हैं तो दिखता है ये सारी चीजें। डे टाइम फैटिक, ज्यादातर बच्चे सोने लगते हैं, या दे आर नॉट फीलिंग फ्रेश क्लास में। थोड़ी सी भी कोई ऐसी चीज है जहां उनको ब्रेन अप्लाई करना है तो दे आर बीइंग वेरी मच डिटैच फ्रॉम द टॉपिक, इजीली इरिटेट हो जाते हैं, पुअर कंसंट्रेशन है, और ये स्क्रीन टाइम इसका बहुत बड़ा एक फैक्टर हो गया है। और इरेगुलर रूटीन जो है उनका लाइफ का, ईटिंग, सुबह में सोना जगना, ये दीज ऑल आर द डिस्टर्ब रूटीन इज द मेन कॉज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। सेल्फ हार्म एंड द सुसाइडल थॉट, ये भी बच्चों में देख रहा है। मैंने बोला अनरियलिस्टिक गोल इज वन ऑफ द कॉज। विड्रॉल है, विड्रॉल इज अ सिम्टम विच इज क्रिएटिंग कि अब इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है, ये जिंदगी बेकार है, दिस इज द विड्रॉल, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, सो दिस लाइफ इज वर्थलेस, तो इसको अब किसी काम का नहीं है, मैं ये नहीं कर पाया इसलिए करने, तो दिस इज द विड्रॉल। एक सिनेमा में, थ्री इडियट्स में, वन चाइल्ड हु वाज मेकिंग ड्रोन एंड दैट चाइल्ड क्विट, मींस सुसाइड अटेम्प्ट करता, दैट वन वाज द विड्रॉल। वो लड़ा नहीं, वो प्रोफेसर से लड़ा नहीं, उनके लिए आगे ये नहीं किया, दोस्तों से शेयर नहीं किया, एंड लेट देयर टू द विड्रॉल। होपलेसनेस वाज द सेल्फ इंजरी, दीज आर वेरी थिंग कॉमन, कि वो कभी हाथ में अपने कुछ काटने की कोशिश करते हैं, या फिर होपलेसनेस रहता है कि सब बेकार है, सब बर्बाद हो गया। सीवियर डिप्रेशन और ट्रॉमा तक की कंडीशन हो जाती है इस कंडीशन में, रिक्वायर्स द इमीडिएट प्रोफेशनल हेल्प। ऐसा कहीं भी नजर आए, एक दो अटेम्प्ट भी अगर उसने कर दिया है और उस अटेम्प्ट से अगर वो सर्वाइवल है, देन उस पर बहुत निगरानी की जरूरत होती है, और इसमें प्रोफेशनल हेल्प की बहुत जरूरत होगी। मीन्स पर्सन मस्ट बी देयर in observation of the counselor and the psychiatric. बुलिंग रिलेटेड इमोशनल एंजाइटी है, और लर्निंग डिफिकल्टीज है बच्चों में, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसग्रेफिया है, ये सब डिजीज है।
वहीं पर है, यहाँ नहीं लेके गया था। तो यही होगा सर, यहाँ देखिए ना, यहाँ उठाइए ना वो हेलमेट कैंसिल कर दिया। ओ, तो कोई नहीं। Impact low confidence, anxiety, and frustrations are these are the certain things, and some प्रोटेक्टिव फैक्टर हाउ द स्कूल कैन हेल्प। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम लगा के स्कूल पेरेंट को और बच्चों को इन्वॉल्व करके इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। एक्सेस टू द काउंसलर, हर स्कूल को एक काउंसलर होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। यूजुअली द स्कूल्स आर, सीबीएसई स्कूल्स आर कीपिंग राइट द काउंसलर्स। अगर लगता है कि किसी तरह का मेंटल इशू है बच्चे के पास, दैट कुड बी रेफर टू द काउंसलर। पीयर सपोर्ट ग्रुप, कुछ ऐसे बच्चों का ग्रुप बनाना होगा, दोज हु आर वेरी जनरस, हेल्पफुल, और दोज हु आर हैविंग सम काइंड ऑफ एम्पैथी इन दैट, तो वो उन बच्चों को हेल्प करेंगे एंड दे विल एकोमोडेट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड टू ग्रो। तो एक ऐसा ग्रुप बनाना होगा, उस ग्रुप को टाइम टू टाइम आपको उस ग्रुप को रिकॉग्नाइज करना होगा, उसको क्लैप करना होगा। दे विल डू दिस ऑल जेनरसली। और वो हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो पीयर सपोर्ट कर देगा जो काम, और पीयर सपोर्ट के पीछे हमको एक गाइड के रूप में खड़ा रहना है, और बाकी का वो पीयर ग्रुप उसको मेंटल इश्यूज से बाहर निकाल सकता है। माइंडफुल एक्टिविटीज, स्कूल्स आर हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम प्रोग्राम्स एंड दैट सम इवेंट्स, ये सब माइंडफुल एक्टिविटी स्कूल्स में होते ही रहते हैं, होना भी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग टीचर्स के लिए भी और पेरेंट और बच्चों के लिए भी होनी चाहिए, दोज हु आर स्पेशली गोइंग टू द board exam or those who are very much near to pursue their career. Parent and teacher collaboration is very much needed. तो बच्चे का इनपुट टीचर के पास होना चाहिए, जो उनका ऑफ स्कूल उनका बिहेवियर है उसका इंफॉर्मेशन टीचर के पास होना चाहिए। पीटीएम इसको यूज कर सकते हैं, जहां ऑफ स्कूल बात करें, मार्क्स और अचीवमेंट के साथ साथ गैदर करें इंफॉर्मेशन कि हमारा आप जो बच्चा है वो ऑफ स्कूल क्या क्या करता है, और पेरेंट को इन स्कूल उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनके हम एक साथ मिल करके, क्रिटिसाइज नहीं करके, कंप्लेन नहीं करके, कोलैबोरेटिव अप्रोच लगाए, and we could bring a change there in the school, especially we can deal there the mental health issues. So all about from my side today. I hope you people enjoyed this session. Hello. Amilesh sir, it was a wonderful session. There's one question. It's very, what to say that very nice. You can also feel that the how the teacher, this Aditi Patel is asking one question. We completely understand that it's very important to take care of students' mental health, but mental health is equally important for everyone, for all human beings. What about teachers who also suffer from mental stress? Are there any steps or strategies planned to support teachers' mental well-being as well? Okay, you are getting a training. You are getting a training to help the teacher, help the students. So, being as a teacher, you are being very much aware with this all. कि क्या क्या करने से ये स्ट्रेस हो रहा है, so you will identify the stressor. तो कई बार स्ट्रेसर को आप इस ट्रेनिंग से समझ पाते हैं कि हमारा स्ट्रेसर क्या है और हाउ टू डील। अगर आप दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो व्हाई कांट यू डू समथिंग फॉर यू। अब है कि वर्क जहां रहेगा वहां प्रेशर रहेंगे, तो हमने कहा कि अगर हम टाइम या रूटीन, अगर ऐसा कभी नहीं है कि हम एक वर्क टीचर के रूप में हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं कि हम उसको ये हमारे ही साथ एक अकेले का है। इट मीन्स ऑल द फैटर्निटीज हैविंग सेम इश्यूज। तो some people are very happy they are dealing it with, means they have developed some kind of pattern to deal with this kind of pressure. तो एज ए टीचर हमको कुछ न कुछ डिवाइस अपने खोजना पड़ेगा कि हम अपने प्रेशर को, अपने रीजन ऑफ एंजाइटी को, अपने स्ट्रेसर को कैसे मिनिमाइज कर सके, हम अपने स्ट्रेस और बर्नआउट को कैसे कंट्रोल कर पाए। और अगर ट्रेनिंग से हम बच्चों के लिए कुछ टूल्स निकाल पा रहे हैं तो कुछ टूल्स हमको अपने निकालना पड़ेगा, एंड वी विल बी वेरी मच इन अ बेटर कंडीशन टू अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ अदर्स। मैनेजमेंट बहुत काम दे रहा है, वो कभी अनरियलिस्टिक काम नहीं देगा, वो देगा उतना काम जो हम अगर निकालें तो अगर पैटर्न पे चले या सिस्टम पे चले तो कई बार हम उसको कर पाते हैं। कई बार अगर हम नहीं कर पाते हैं तो भी हमारे पास रहता है कि वी आर गोइंग एंड टेलिंग दैट कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड ऑल। तो वो चीजें हम कितना बेहतर समझा पाए
कि हमारी क्या प्रॉब्लम हो रही है. So if you are feeling problem as a teacher, then you should talk there to the people that this is going to be a issue there, and which is leading there to the mental health. So but natural like management and the school will understand it, and they will definitely help you out. But as a teacher, you have to devise some method how to deal with these all situation. क्योंकि इस प्रोफेशन में आए हैं तो कुछ प्रोफेशनल चैलेंजेस होते हैं, और उन चैलेंजेस को कैसे डील करें कि वो हमको मेंटल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ की ओर ना लेके जाएं, हम उनको बहुत प्यार से डील कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. एंड टीचर्स Thank आर you, द sir. द द Hope Aditi ma'am, people of I person. hope Aditi ma'am's very nicely understood that. Let's, as in short, Masar is telling that keep the professional and personal life separate, and Correct. time management, do it properly, some meditation, and that will, and sometime brain gym also required. That is, you can dance also one form, anything you can Yes. find, music, dance, anything. So wonderful session. On behalf of the entire participants, many are given that very good session. Really, now I hope that everyone, including me, also understood that why the students are showing this type of behavior and how to deal with the students. Also, thank you very much, sir. Thank you, thank you, thank you. And the participants, already I posted the link since last sir extended the session, though I posted the link before 6 only. So kindly pick up it and fill it up, and sir, you can have a nice, have good Um, night, sir. Good night to I, all of I you. I feel very privileged today to be at this platform, and hopefully I'll see there in any offline session also. I love to be part of this Excellent. Yes, sir. learning program. All right. Okay. Thank you, ma'am, and thank you, everybody. Good night from my side. Thank you very much. Thank you to all the training coordinators too, and the founder chairman to each and every executive members of Arivata Sahodayas too, for this getting an opportunity to us to learn such a wonderful person and wonderful topic also, which is very need of the hours also. Exam also nearing, this pressure will increase. So how to handle them, that is we learned today. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank You you, can ma'am. leave. Good night. Participants, I already posted the link. Kindly copy the link and keep it in your and then post it, because 5 minutes more I'll give. Immediately, please pick up the link. Otherwise, the link will be stopped because it's already posted since long. So please do it immediately.